Yeah. Uh, Welcome, ma'am. Welcome to our show, actually. And I am with Mrs. Ranjana Kanti. She is the founder of NGO India Redefined. And today we are going to discuss with him what are the work she is doing in the society and how she does it. And we'll know about the NGO. So, welcome. Can you just please tell us? I know a little bit about the India Defined. I have visited the website several times, and we are also associated in many groups. So, when did this started? This started in 2009. Am I right? Yes. Yeah. My first question was, what was the motivation? How did this came into picture? See, motivation behind India Redefined is just one single sentence you can say that we have left governance to people who are really not our representatives. We have left policies to people who do not feel that they are accountable to us. Yeah. And we have left all the other things like environment, slum, literacy to NGOs and social workers who are struggling without our support. R means citizen support. So in any country, any place, either government is working or NGOs are working, or now because of CSR, corporates are working. For whom they are working for the common people, for the citizens. So in 2009, when we started it, I'm not the visionary of India Redefined. Visionary is Anurag Kanti, who thought about this vision. He thought of bringing the fourth sector first, the citizen sector, to work for the country, not by just a donor by giving donation of money, but by giving donation of time. So the motivation behind it is that we as a citizen, we are very fond of talking about our rights, but we shy away even talking about our responsibility as a citizen. We what happens that अलग अलग बहुत सारे लोग अच्छे काम करते हैं ना, एनजीओ करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने अकेले किया, लाखों करोड़ों लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, बट we only come together on one platform when we are against something like Azadi, like corruption movements, Anna Hazare. We don't come together on one platform positively to work for country. So the motivation behind it was that only, that why should citizen not get involved by doing something for the country? Why should we leave everything to only government and this, and then we keep cribbing about it that this is not happening, that is not happening. So that was the motivation. And we started with very simple campaigns for citizens, in which hardly donation and this thing was needed. There were very simple things which any person as an individual can do for the society, for their area. Any person, you don't need to have a donation for that. So 35 campaigns we launched, and the motivation behind thinking about this vision, why visionary thought about this, was simple, that he had seen me working for the society without before India Redefined was started. In whole my life, he had seen me working for the society without having a single resource and always making doers. Not, I never thought that how many people I can benefit. I always thought that how I can make doers for the same causes. So I was working for various causes, and he made those causes as 35 campaigns, and we only invited citizens. As a common person, you come and join and do. And it was a success. When you don't ask for money, it was a success. Just like you said, because we all feel we have rights, but very few people realize and think about that we have liabilities also, and we are accountable also to our nation. So we should do something. So I feel this is very hard to motivate others
to involve in a social cause? I'll tell you why people were motivated. See, because see, after these 13 years, I will again take you back to 2009. In 2009, when this vision was started, so why will anyone work on someone else's banner? Why will anyone work together? है ना, वो पेड़ तो वैसे भी लगेंगे, सफाई होगी, एजुकेशन होगा, हेल्दी इंडिया होगा, सारे कॉजेज होंगे. उनको जरूरत क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पे काम करें. Why they did and why we invited? Because India Redefined Citizen Movement is anti-corruption movement. It is become like a pressure group now, but that time we thought of making it like a Nagarik Sashktikaran Andolan, citizens empowerment movement we called it. And we said that आप अलग-अलग काम करोगे. This is a very good quotation which our visionary says कि जुगनू जो हैं these fireflies, अगर एक सिंगल जब फ्लाई करते हैं तो वो प्रकाश नहीं पैदा करते, but when they come together प्रकाश पुंज पैदा होता है ना. तो we are empowered when we are doing things together. Each one becomes a visionary. India Redefined is not a some vision which everyone should follow. He called it amalgamation of different visions. Everyone can give their visions in that, because we wanted to make leaders. And that is where he needed a common person's face on whom he can rely, and he has seen that that person has worked for the causes. There's a list of causes. If you ask, I can tell you for this thing, and could make, and he wanted to make me a force multiplier. Yes. So in the beginning, it was just he wanted to make that only, that okay, when she could do without even a single thing or a single rupee, why can't you do? So that way, that became motivation for people. That tomorrow they were waiting for this thing, that how we can become a pressure group. And Anna's movement made a lot of difference for us, because it happened in 2012. And people saw that एक आदमी के अच्छे कर्मों पे सब टोपी लगा के बैठ जाएंगे, उधर एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाएगी, तो एक आदमी के उस पे धरना मोर्चा करके उंगली उठा के दूसरे पे करप्शन को वो करके कुछ नहीं होने वाला है. क्योंकि हमारे इसमें धरना मोर्चा, दूसरे पे उंगली उठाना, किसी को गलत कहना है ही नहीं. अच्छे काम करोगे, जहां पे ज्यादा लोग दिखेंगे, जहां पे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, वो खुद ही प्रेशर ग्रुप बनेगा एंटी करप्शन. हाँ, तो वो अन्ना के मूवमेंट से बहुत फायदा हुआ है हमें, बहुत जबरदस्त. सेम टाइम में जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था, वो तो बहुत ही वायरल हो गया था काफी कम समय. लेकिन मैं बहुत सपोर्टर हूँ उनकी, मैं बहुत एडमायर करती हूँ फिर भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा ही तरीका है. लाखों तरीके हो सकते हैं टू मेक दिस कंट्री अ हैप्पी कंट्री. Everyone's there is no formula, math formula कि हाँ ये करेंगे तो. अरे सबने अपने अपने किए. So many freedom fighters did, you are doing, I am doing, so many people. तो ठीक है, everyone did their own part. I'm not saying, but उनके मूवमेंट से इंडिया रिडिफाइंड को फायदा ये हुआ कि लोगों को समझ आ गया कि धरना मोर्चा करके मूवमेंट नहीं सक्सेसफुल होगा. उसको अच्छे काम करके एक ही जगह पे करते जाएंगे. बहुत जगह ये प्रेशर ग्रुप का काम कर रहा है, इसीलिए तो मीडिया में नहीं आ रहे थे कि पता चला यही फेमस हो गया. बाद में हम जो CSR हब बनने वाले थे, बिकॉज वो बाकी का पार्ट बाकी था ना, कि इतने सारे NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, thousands and thousands of organizations are empaneled with us, and we are a single social development solution in any state. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो इन द बिगिनिंग, शुरू में आपके साथ कौन कौन से बड़े ऑर्गेनाइजेशन जुड़े जो सोशल? कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जीरो, कोई भी नहीं. जीरो. कोई भी क्यों बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जुड़ेगा भाई? वो कोई वो अगर करते हैं, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उसको दूसरे की शैडो में आने की जरूरत, वो सोचेंगे वो ओवर पावर कर लेंगे. हालांकि ऐसा नहीं है. देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीवन एट द टॉप. एवरीवन हैज गॉट, देखो आइडेंटिटी थोड़ी ना किसी के ले रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ा है. हमारे कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन, आप फोर्टिस हॉस्पिटल ने कितने सारे हमारे हेल्थ चेकअप कैंपेन किए, तो फोर्टिस तो वही है ना, वो थोड़ी ना इंडिया रिडिफाइंड बन गया. फोर्टिस हॉस्पिटल इन एसोसिएशन विद इंडिया रिडिफाइंड, दे डिड हेल्थ चेकअप कैंप.
सेम वे सो मेनी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारा एजुकेट इंडिया प्रोग्राम है, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम 35 प्रोग्राम्स हैं। तो अब पढ़ाने वाले तो चलो सिटीजन हो गए, है ना, या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, हो गए, फिर कंप्यूटर चाहिए। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने दिए हैं हमें, हमें सपोर्ट किया है, हमने उनसे चेक काट के नहीं मांगा। अभी भी कॉर्पोरेट को भी हम कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हमें चेक काट के दें और एनजीओ काम करेगा। इट इज अ कॉर्पोरेट सिटीजंस एनजीओ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। विल सिट टुगेदर, यू बी अ पार्ट ऑफ दैट। आप ये नहीं कर सकते। अगर कोई जैसे एनजीओ डोनेशन मांगने आते हैं, उनको आप पैसे दे दीजिए, उसके बाद उनकी आपकी जरूरत नहीं है, वो गर्ल चाइल्ड के लिए खुद काम करेंगे और वो करेंगे। हमने पहले ही मना कर दिया कि 1 रुपया भी अभी टिल डेट देयर इज जीरो डोनेशन। इंडिया रिडिफाइंड के बैंक अकाउंट में कोई पैसे नहीं दे सकता। यू कीप मनी इन योर दिस थिंग, एज ए डूअर यू वर्क फॉर दैट, as a doer you do the cleaning, as a doer you do the education for slums, as a doer you do the health, as a doer you पेड़ लगाओ। तो आप अपने पैसे रखो, पैसे चाहिए, ऐसा नहीं है पैसे नहीं चाहिए, पैसे, लेकिन उस पैसे का आप हिसाब रखो। लेकिन सिर्फ डोनर नहीं हो आप, यू आर अ डूअर ऑल्सो। एंड हमारे सपोर्टर्स, हमारे एक्सपर्ट्स, और इनको एम्पैनल करते गए हम। अभी तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा एम्पैनलमेंट है हमारा। कितने लोग हैं ऑलमोस्ट? हमारे देखिए, अगर जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं वो 13 लाख से ऊपर हमारे कॉमन पीपल हैं। 460 एनजीओ पार्टनर्स हैं। बड़े वाले तो होंगे नहीं, छोटे छोटे एनजीओ, लेकिन ग्रास रूट के हैं, और थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आए हुए हैं, एनजीओ पार्टनर्स हैं। वैसे ही करीब करीब 3000 प्लस मैन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के एक्सपर्ट्स हैं, प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं, नॉर्मल कॉर्पोरेट्स हैं। अब सीएसआर के लिए पिचिंग चल रही है विद द कॉर्पोरेट्स, क्योंकि वो मैंडेटरी है इनका। तो वी आर सॉल्यूशन फॉर दैट देम, नो, वी आर, यू आर गेटिंग इन फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, एनी प्लेस we will be a solution for। suppose गोवा में आप कहते हैं कि एजुकेट इंडिया करो, तो गोवा में कम से कम 4 एनजीओ आर आवर पार्टनर्स। सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां पे 40 इयर्स पुराना, उनको ग्रास रूट की प्रॉब्लम पता है, वो हमारे वो होंगे। तो नॉट ओनली आर सीएसआर कमिटी, जो हमारी अपनी जो सीएसआर वो है, वो एनजीओ इन्वॉल्व होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ करेंगे तो जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, सपोज आदिवासी एरिया के लिए, तो वो बेनिफिशियरी खुद भी डूअर बनेंगे। जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा, वो खुद डूअर होंगे उस काम के, अपने लिए खुद काम। 13 साल से तो आदत है ना अपने लिए खुद काम करने की, तो वो खुद भी वो होंगे। तो नॉट ओनली एक्सपर्ट्स, वेरियस टेक्नोलॉजीज आर विद अस। बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं हमारे बने हुए, सिटीजन्स हमारे साथ हैं, वो सोशल रिसर्च वाले हमारे साथ हैं, स्कूल्स कॉलेजेस हमारे पार्टनर्स हैं। मतलब देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स which can get solved. And that is, see, I don't, why I become ready for giving interviews, for only simple reason that I don't know how to make this message go to the corporates, how Modi ji should listen to this, कि we are solution, we are giving you hand, उसी सिस्टम में हाथ दे रहे हैं। कम से कम पता तो हो ऐसा कुछ कंट्री में हो रहा है, कौन जानता है, हमें कोई नहीं जानता है। उसमें हम लोग पूरी मदद करेंगे, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे पब्लिश करते हैं, हमारे ऑलमोस्ट कम से कम 53,000 सब्सक्राइबर हैं, तो इतने लोगों के पास तो जाता ही है। और इसके अलावा भी सोशल मीडिया में जहाँ भी हम लोग हैं, हमारा जो भी नेटवर्क है, उसके थ्रू उसको प्रमोट करने में कोई परेशानी नहीं है। जिस तरह भी आप गाइड करेंगे हम प्रमोट कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या होती है ना कि देखिए, 2 अलग अलग पार्ट हैं। एक है सीएसआर हब, ठीक है, जिसमें हमारे हंड्रेड्स ऑफ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं विच नीड फंडिंग, वो जीरो डोनेशन पर नहीं, उसके लिए कॉर्पोरेट का सहयोग चाहिए, मिनिस्ट्रीज का सहयोग चाहिए फॉर द फंडिंग। दूसरी तरफ ये जो सिटीजन मूवमेंट की बात कर रही हूँ, एंटी करप्शन, वो कॉमन पीपल है, वो जो बड़े शहरों में नहीं है, छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, वो हमारा प्रेशर ग्रुप का काम। वो प्रेशर ग्रुप और एंटी करप्शन वर्ड से लोगों को डर लगता है, पता लगा एक पॉलिटिकल पार्टी ना खड़ी हो जाए, इट वाज सच अ बैड एग्जांपल। तो पता लगा वो, उसी लिए मुझे, मैं नाम लिया मैंने मोदी जी का, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि कुछ भी नहीं है, जस्ट सिटीजंस दिस थिंग। वो बैठे बैठे जो बातें करते रहते हैं, एक क्रिकेट मैच की तरह कंट्री को देखते हैं, उसकी जगह वो हाथ देंगे कंट्री को बनाने में। बिना सिटीजन के कुछ नहीं, कोई नहीं, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए कोई नहीं बन कर सकता है।
है ना, मतलब 540 MPs रिस्पॉन्सिबल है या 125 करोड़ जनता रिस्पॉन्सिबल है? हाउ कैन यू टॉक अबाउट दिस थिंग कि आपकी कंट्री में, मतलब माना कि फायर ब्रिगेड का काम है आग बुझाना, लेकिन आप 2 बाल्टी पानी तो डालेंगे ना, कि वेट करते रहेंगे कि नहीं फायर ब्रिगेड ही आएगा तब तक जले देश। बिल्कुल। और वैसे भी हम अगर डेमोक्रेसी को समझे तो जब तक पीपल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा कोई भी चीज सक्सेसफुल होगी नहीं, चाहे गवर्नमेंट बिल्कुल। कुछ भी कर ले। So this is the way we are working. So even if you ask me slowly from the beginning, I can tell you कि how we reached till there. That story from the beginning, that is okay, that I have listened to the story actually, little bit I know. Mostly, what are the common challenges that you face currently? बहुत तरह तरह के चैलेंजेस एवरीडे आते हैं। एक हमारा, आपको मैं पहला चैलेंज बताती हूँ। 2009 में हमने शुरू किया, तो हमारे जो 35 कैंपेन्स हैं उसमें से 2-3 बड़े इनोवेटिव हैं। एक जैसे एक का नाम है मिशन एडमिशन, तो वो सिर्फ कॉलेजेस की वेबसाइट, आईटी के बच्चे होते हैं या प्रोफेशनल्स, कॉलेजेस की वेबसाइट ठीक करते रहते हैं। यहाँ से बैठे बैठे 7 अमेरिकन कॉलेजेस में मेरे बेटे का एडमिशन हो गया। अमेरिका थोड़ा ना जाना पड़ा, उनका सिस्टम ऐसा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि थर्ड लिस्ट निकलते निकलते बच्चा जो है वो वेट करता रहेगा, कोई सिस्टम ही नहीं बनाया हुआ, वेबसाइट ही नहीं है पहले तो वो। वैसे ही हमारा एक कैंपेन है मोटिवेटिंग द बेगर्स टू लीव बेगिंग। तो अब मोटिवेटिंग द बेगर्स टू लीव बेगिंग बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमारे उनमें डिफरेंस क्या है कि हम लोग कहते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं उनको डूअर या कोऑर्डिनेटर कहते हैं। तो उसके कोऑर्डिनेटर जो हैं वो पहली बार वो प्रोग्राम 2011 में नवी मुंबई में हुआ। आई वाज इन नवी मुंबई पहले नेहरू स्टेशन पे। मैं डेट भी बताती हूँ, 17 दिसंबर 2011 को हुआ। उसमें वो प्रोग्राम कैसे बनाया हमने कि मैंने सिर्फ 10 श्रमिक क्लास के वर्ग के लोगों को इकट्ठा किया। श्रमिक क्लास मीन्स लेबर क्लास, लेबर क्लास मीन्स कचरा उठाने वाला, माली, धोबी, दूध वाला, सब्जी बेचने वाला, हाईएस्ट ड्राइवर था, शॉपकीपर, बस चलाने, जो भी। उन सबको 5-5 अपने प्रोफेशन के लोगों को लाना था, है ना। एक ड्राइवर को 5 ड्राइवर और लॉन्च से करके 6 हो गए मेरे पास, और ज्यादा भी ला सकते थे। और 17 दिसंबर को हमने स्टेशन मास्टर और जो भी अथॉरिटी थी उनसे स्टेशन को बुक करा लिया। एक पार्ट, पूरा स्टेशन तो नहीं करा सकते, एक पार्ट कि हमको इतना सा पार्ट, नवी मुंबई के स्टेशन बहुत बड़े बड़े हैं, तो इतना सा पार्ट आप हमें दीजिए और 7 डेज के लिए हमें कुछ डब्बे रखने दीजिए यहाँ पे अपने इंडिया रिडिफाइन लिखे हुए, खाली एम्प्टी बॉक्सेस ऐसी, और इंडिया रिडिफाइन का मोटिवेटिंग द बेगर वो। और हमने इनवाइट किया आसपास के सोसाइटीज के लोगों को, शॉपकीपर्स को, जितने लोग आ सकते हैं, जो भी आप, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई पॉलिटिशियन के क्या, मतलब आप आओ, वी आर रेडी टू वर्क विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आप आओ। और हर एक श्रमिक क्लास के पर्सन को 5-5 भिखारी फैमिलीज को लाना था, ठीक है। उनको वहां पे लाके, एक माइक था हमारे पास, उसके सिवा कुछ नहीं था, न्यूज़पेपर बिछा बिछा के, बेगर्स हमारे चीफ गेस्ट थे, ठीक है। उनको बिठाया गया, हर एक ने अपने अपने, मान लो कन्नड़ का कोई बेगर है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई केरला का मिला, कोई कहीं का, उसको अपने अपने उसके उन्होंने ढूंढे थे। अपनी अपनी स्टोरी बतानी थी कि मैं तेरी तेरे गरीब था, बिना पढ़ा लिखा था, 10 दिन भूखा सोया, ये एक वड़ा पाव भी नहीं मिला खाने को, लेकिन भीख नहीं मांगी, माली बना, भीख नहीं मांगी, कचरा उठाया, भीख नहीं मांगी, वो बना भी। सब बिना पढ़े लिखे, सब गांव से आए हुए, सबको इंग्लिश नहीं आती, हमारे जैसे लोग नहीं छुड़ा सकते भीड़। तो आप जो है भीख मांगना छोड़ो, नौकरी हम दिलाएंगे। उन्हीं का काम था नौकरी दिलाना। और आसपास के दुकानों घरों से लोगों को किया कि भीख के तौर पे नई नई जिंदगी की शुरुआत के लिए जूते, चप्पल, कपड़े, बर्तन, टॉफी, बिस्किट, अनाज, जो आप है इस डब्बे में दो, इनको दिया जाएगा इनाम के तौर पे, कि ये अगर भीख मांगना छोड़ते हैं। अब भिखारी तो वोट बैंक है बहुत सारे लोगों के, है ना। अब भिखारियों का अगर छूट जाए तो सोचिए क्या होने वाला है। तो इतने भिखारी उस समय होते थे वहां पे। मैंने कितनी बार क्लासेस वगैरह बहुत कुछ मैंने किया है, उनका जन्म लिखा नहीं होता था, वो सब बहुत बहुत सारी चीजें बेगर्स के लिए मैंने की हुई है, उनके बर्थडे मनाने का। वो उस दिन बेगर गायब, कहाँ गए? आधे मस्जिद में बंद, आधे मंदिर में बंद। 2 है वहां, बहुत बड़ा शनि टेम्पल है, बहुत बड़ा मस्जिद है वहां का मशहूर, बंद।
हाँ, फिर भी क्योंकि ऑटो वाले बस वाले इन्वॉल्व थे, सबको दिखाना था कि हमने कुछ किया। जिस कचरे वाले के लिए कोई कुछ करेगा वो तो हाथ बन गए, तभी तो कहते हैं लेट्स एम टू मेक डूअर्स देन बेनिफिशियरीज, है ना। उस कचरे वाले के लिए वो प्राइम मिनिस्टर, वो रोटरी क्लब, वो एनजीओ, वो कॉर्पोरेट उसके लिए काम करेगा, हम उससे काम करा रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने वो किया तो एक दिन में 17 भिखारी फैमिलीज, ये लोग उठा लाए भिखारियों को दूसरी जगह से। नेरुल में प्रोग्राम था ना, वाशी से उठा लाए, बेलापुर से उठा लाए, एक जगह के बंद किए ना, और इट वाज द ह्यूज सक्सेस। और उसके बाद 17 भिखारी फैमिलीज और 5 भिखारी जो इंडिविजुअल्स ने भीख मांगना छोड़ा एक दिन में। 50 जगह पे ये प्रोग्राम रिपीट हुआ है स्टेशन पे, सेम वे से जो, लेकिन वो चैलेंज था। ऐसे ही रोज चैलेंजेस तो इतने, मतलब पैसे नहीं होते, 5 पैसे नहीं होते हैं कि कैसे कोई मेरी जगह एक जना और एक जगह कुछ बोल दे। काम बहुत सारे होते हैं और इतनी मल्टीपल लोकेशन पे काम इसलिए होते हैं कि रंजना कांति इज नॉट इंडिया रेडिफाइड, वो करने वाले लोग हैं, कर रहे हैं, कहीं पेड़ लग रहे हैं, कहीं सफाई हो रही है, कहीं लिटरेसी प्रोग्राम चल रहा है, कहीं कुछ। आप खाली, मैं तो कहती हूँ गूगल पे जाके देखो, वेबसाइट तो लोग अपनी झूठी भी बना लें, गूगल पे सर्च मारो इंडिया रिडिफाइंड रंजना कांति आप, और नॉट ओनली इन इंडिया, दूसरी 5 कंट्रीज में ग्लोब रिडिफाइन शुरू हो चुका है कॉलोनीज में। इवन इन कंट्री लाइक पाकिस्तान में भी पाक रिडिफाइन शुरू हुआ 2009 में, मैंने शुरू कराया था। दुश्मन भी जिसको अप्रिशिएट करे, सोचिए, बताया भी उनको कि हरा रंग आपका नहीं है, ये एनवायरनमेंट का कलर है भाई, लेकिन उन्होंने भी किया। मैं ये कह रही हूँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, है ना, वो अलग एक इशू है, उस पर मैं नहीं बात करना चाहती। पूछिए मुझसे कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछिए, मैं बता दूंगी। मेरे बारे में आप जानना चाह रहे थे, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे फेस बनाया गया, और मुझे फेस क्यों बनाया गया, आपके क्वेश्चन बता रही हूँ। आपको बनाया गया, जो मैंने समझा अभी तक की, जो इंडिया रिडिफाइन के पीछे जो मोटिवेशन था वो प्राइमरली आप ही थे। नहीं, मोटिवेशन मैं नहीं थी। देखिए, मोटिवेशन मैं नहीं थी। मोटिवेशन जो था वो ये था कि सिटीजन सब कुछ दूसरों पे क्यों छोड़ते हैं, सिटीजन को कैसे लाया। जब मोटिवेशन तो वो है ना जो सोचा, मैं तो काम कर रही थी तो वैसे ही चलो क्लैपिंग कर देते मेरे लिए, लेकिन आई वाज अ वेरी इम्परफेक्ट पर्सन, है ना। आई वाज नॉट कोई, मैं परफेक्ट पर्सन नहीं हूँ, और कि बहुत कुछ मेरे को आता है, मुझे बहुत कम चीजें आती हैं, पॉलिटिकली इलिटरेट हूँ काफी। तो मुझे, मेरे जैसे पर्सन को इसलिए सामने भी लाया गया कि इसको बनाने में लोगों का हाथ हो। जब बनाने में लोगों का हाथ, परफेक्शन डज नॉट हैव स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना। परफेक्ट बना दो तो फॉलोअर बनेंगे सब। इसीलिए अवार्ड नहीं लिए कि सेलिब्रिटी बन गई तो पता लगा वो किरण बेदी और लक्ष्मीबाई और सब जो हैं उनके तो फॉलोअर होते हैं ना, वो तो खुद लीडर्स हैं। अगर मैं लीडर बन गई तो फिर पूरा फेल हो जाएगा। मेरे को लीडर नहीं बनाते हैं, वो फॉलोअर बनाते हैं। हमें लीडर्स बनाने थे कंट्री में, है ना। और लीडर कब बनते हैं, जब इस मिट्टी के घड़े को बनाने में उनका हाथ हो, है ना, उसमें गड़बड़ हो, पूरा गड़बड़ हो, उसको अच्छा करते जाओ तो इंडिया रिडिफाइन जो 2009 में था वो इम्प्रूव करता गया, बिकॉज लोगों के विजन शामिल थे। लोग मतलब पीपल हैव मोटिवेटेड। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कर दिया और विजनरी कुछ खास है, पूरा श्रेय जाता है इसके सपोर्टर्स को, पूरा पूरा। मुझे शर्म आने लगती है जब मैं इंटरव्यू देती हूँ और मुझे अवार्ड मिलता है, तो आई रियली डिनाई। 40 अवार्ड डिनाई कर चुकी हूँ मैं, कि काम दूसरे लोग करें, मैं बैठे बैठे अवार्ड ले लूं। मैम जस्ट, अब तो वो अपने जो काम में करती थी 50, वो तो आप पूछ ही नहीं रहे हैं, वो तो मैं 0 पे आ गया। मैं हार्डली एक सोशल वर्कर हूँ, मैं जूम पे बैठी बैठी फोन अटेंड करने वाली, ईमेल का जवाब देने वाली पर्सन। तो अभी करेंटली जो आपके प्रोग्राम चल रहे हैं वो कहाँ कहाँ चल रहे हैं? देखिए, सिटीजन वाले प्रोग्राम तो सारे स्टेट्स में चल रहे हैं, हर स्टेट में। वो 35 कैंपेन है, हर स्टेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। कोई 6 दिन का होता है, 6 महीने का होता है, 6 साल का भी होता है, ठीक है। वो तमिलनाडु में जैसे एक प्रोग्राम हो रहा है, मेरे को एरियाज की जगह मुझे पढ़ना पड़ेगा, एरियाज के नाम लोग जाके देख सकते हैं वहां पे। अभी करीब 1 लाख से ऊपर पेड़ लग चुके हैं। इसके तिरुपति के पास है वो, वहाँ एक एनजीओ है, हमारा पार्टनर है, उसका नाम व्हाइट हॉर्स करके है उसका नाम। वहाँ के इतने बहुत सारे एनजीओ, क्लब्स,
सिटीजन्स, वहां पे अवार्ड भी बहुत सारे इंडिया रेडिफाइन को न्यूज तमिल न्यूज़पेपर में आया उसमें। और छोटे मोटे आई चेकअप कैंप है, एजुकेट इंडिया तो हर जगह होता रहता है, कोरोना में तो भर भर के हुआ हर जगह, क्योंकि बड़े स्कूलों के बच्चों को तो ऑनलाइन क्लासेस मिल रही थी, उनका क्या, जिनको हम कहते हैं पढ़ाई करो, वो तो जीरो पे आ गए ना म्यूनिसिपल स्कूल के और सब, तो उनका तो वही था कि हर 10 बच्चे पे मेरे 2 यूथ वाले लोगों ने बहुत काम किया, उनकी लैंग्वेज में क्लासेस कर करके वो किया। तो एजुकेट इंडिया तो सारे साल हर जगह हर स्टेट में चलता है, जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी में, मध्य प्रदेश में, इसमें आप देख सकते हैं जाके। क्लीन इंडिया ऐसा प्रोग्राम है जो आसानी से हो जाता है, 4 दिन भी कर चले तो एरिया क्लीन हो जाता है, वो बहुत पेड़ लगाने का बहुत, और छोटे छोटे कैंपेन्स है ना, मैंने कंप्यूटर लिटरेसी का प्रोग्राम है, ये जो मैंने बोला मोटिवेटिंग द बेगर, ऐसी 1 वुमन 1 साड़ी करके एक प्रोग्राम हमारा है, वो नाम है अलग अलग, मैं कितने नाम बताऊं आपको, आप 24 घंटे में आप सुने, मैं 24 घंटे बता सकती हूँ। तो वो मतलब बहुत तरह की चीजें हैं। और मैं भी कोई, I'm not a leader or activist. I'm just only adjective I think I can give to myself. I'm a doer and I'm trying to make money. मैं कुछ खास चीज नहीं है, तो खैर सपोर्ट। हाँ, अभी जो मुझे किस लिए चाहिए कि ये आवाज पहुंचे, बिकॉज ऑफ आवर इनोवेटिव प्रोग्राम्स, उतने बढ़िया इन लोगों ने सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे प्रोग्राम बन सकते हैं, जहाँ बेनिफिशियरी खुद इन्वॉल्व होंगे, कितने एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होंगे, सोशल सेक्टर के हमारे पास एक्सपर्ट्स वैसे, सी हमने इन लोगों को एम्प्लॉय नहीं किया हुआ है, प्लीज ऐसा नहीं है कि 3000 इयर्स ऑफ एक्सपर्ट हमारे एम्प्लॉय कहीं बैठे हैं, नहीं, दे आर एम्पैनल्ड विद अस। वही तो स्मार्टनेस की हमारे विजनरी ने, है ना। 2 फॉर्म है हमारे पास, कुछ एक फॉर्म है एनजीओ पार्टनरशिप का, दूसरा है एक्सपर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस का, बस वो हमारे एम्पैनल है, ठीक है। वो जो है वो बैठे बैठे हमेशा सिटीजन मूवमेंट वाले काम नहीं करते हैं, जब हमें फंडिंग वाले प्रोजेक्ट मिलते हैं तो वो एक्सपर्ट, वो टेक्नोलॉजी, अगर मान लो कि टेक्नोलॉजी वालों को तो बहुत फायदा भी होता है हमसे, बिजनेस हाउसेस को, सपोज आप सोलर बेच रहे हैं, ठीक है, आप वाटर प्यूरिफायर बेच रहे हैं, कुछ तो बेचिए, साबुन बेच रहे हैं, कुछ तो बेच रहे होंगे ना, उसको भी हमने कोशिश किया है कि सोशल सेक्टर का प्रोग्राम बनाओ। सोशल सेक्टर का प्रोग्राम या तो विलेजेस में पहुंचे या एनवायरमेंट का हो, ठीक है, वो करके तो फिर उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं फंडिंग की और बहुत सारी चीजों की। तो आपके एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी चलते हैं? एजुकेशन से रिलेटेड मोस्टली तो कंप्यूटर लिटरेसी पे बहुत ध्यान देते हैं, प्राइमरी एजुकेशन। मैं आपको अभी लिस्ट पूरी बताती हूँ कि जो एजुकेशन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम है। देखिए, क्लीनिंग से, मैं क्लीनिंग से स्टार्ट कर सकती हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। एजुकेशन, लेकिन हम लोग के पास में अभी सिर्फ 10 मिनट का समय है, क्योंकि इसका टाइम। ठीक है, मैं आपको फास्ट बताती हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं क्लीन इंडिया में, वाटर पे, सैनिटेशन पे, हाइजीन पे, वॉश पे, वेस्ट मैनेजमेंट पे, एयर पे, वाटर सॉइल पोल्यूशन पे, इन सब के कुछ चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं और उनको लिए फंडिंग की वेट कर रहे हैं। एजुकेशन के प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम्स है, हो भी रहे हैं और मतलब कुछ के हम वेट कर रहे हैं भी फंडिंग मिले तो। डिजिटल एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है, ठीक है। ग्रीन इंडिया में हमारे एनवायरमेंट पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, सस्टेनेबिलिटी पे, बायोडाइवर्सिटी पे, इको फार्मिंग पे, फॉरेस्टेशन पे, फार्मर्स के ऊपर ये नांदेड़ में बहुत बड़े सालों हमारा प्रोग्राम हुआ, उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह पे। आपको फोटोज हर जगह डली हुई है, आपको फेसबुक और लिंक्डइन वो भरा हुआ है उनकी फोटोज से, और एग्जैक्ट लोगों के नाम है, मिस्टर हरोले करके थे, 50,000 फार्मर्स के ऊपर हुआ था, सालों काम चला था वो इन यहाँ वहां पे नांदेड़ में। फिर ग्रीन इंडिया में एनवायरमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, इको फार्मिंग, इन सब पे। हेल्दी इंडिया में एम हेल्थ पे हमारे बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, टेलीमेडिसिन पे, रूरल हेल्थ केयर पे, इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग पे, और दूसरे जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसपे। सी बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हमने ना स्टेजेस बनाए हैं, मैं एकदम शॉर्ट में आपको पूरा खत्म करती हूँ। क्या है कि इंडिया रिडिफाइंड का पहला स्टेज है अवेकन इंडिया, जो हो चुका है हमारा काफी, बाय ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, सिंपल। फिर क्लीन इंडिया, किस किस चीज से? क्लीनिंग ऑफ करप्शन, पोल्यूशन, अनहाइजीनिक कंडीशंस, polluted environment, contaminated water, soil, anything which requires cleaning. फिर ग्रीन इंडिया,
result of clean India, है ना, or achieved by using sustainable method and technology for greener India. उन्हीं के उससे होगा ना, like emission reduction, reducing effects of climate change, rain water harvesting पे बहुत programs है, उनका result होगा healthy India. जो क्लीन इंडिया और डेडिकेटेड स्पेसिफिक हेल्थ केयर इश्यूज पे होगा, उससे आएगा प्रॉस्पेरस इंडिया, ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो, और उससे हैप्पी इंडिया, जो अभी इट मे साउंड यूटोपियन, लगता है कि मैं ख्वाब दिखा रही हूँ, लेकिन something to strive for. Let us try, and same way we can make even a globe something to a happy globe, you can say. So we are inviting, in fact, the organizations, citizens, experts, corporates, NGOs, NRIs, स्टूडेंट्स, एनआरआईज के लिए डेवलप योर ओन विलेज हमारा प्रोग्राम 2009 से है कि यू अडॉप्ट द विलेज ना, 5 बंगाली मिलके एक बंगाल का गांव ही अडॉप्ट कर लो, 5 पंजाबी, तो वो करके उसके मेथड्स हमने दिए हुए हैं, बनाए हुए हैं, सब कुछ इस इंटरव्यू के बीच में शायद पॉसिबल नहीं होगा बताना, तो मतलब their innovative projects are there and some are happening, because जीरो डोनेशन पे कितना हो सकता है बताइए, है ना, सिटीजन खाली जिस चीज को खुद फंड करें, वो तो लोकली प्रोग्राम हो सकते हैं ना, एक लिमिट में हो सकता है ना. वी डू नीड मनी फ्रॉम द कॉर्पोरेट थ्रू देयर CSR, वी नीड फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज एंड ऑल. उसके लिए वो प्रोजेक्ट्स फिर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट सिटीजन नहीं कर सकते हैं. दो अलग अलग चीजें हैं. सिटीजन मूवमेंट के 35 कैंपेन है और ये 100-200 हमारे प्रोजेक्ट्स तैयार है जिसकी फंडिंग की वेट कर रहे हैं. तो अब है बेसिकली, आप अगर कुछ मैसेज देना चाहती हैं जनरल पब्लिक को, जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप वो मैसेज दीजिए, और कुछ अगर लिंक्स अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो हम वीडियो के साथ में उसको डालेंगे चैनल पे, जहाँ से लोग आपको कांटेक्ट करेंगे. See, what I'm trying to ask, पहले तो common people के लिए, कि we are grown up by reading the stories of big people, Ram, Subhash Chandra Bose, Jesus, Guru Nanak, anyone जो बड़े लोग हैं उनकी कहानी सुन. So why don't you make your own story? उनकी story उनका bank balance पे नहीं थी, what they did for society and the country and the globe उसमें थी, है ना. So make your own story related to society, country, area, college, environment. You make your own. So please join us. Together we can do wonders. साथ मिलके तो कुछ भी कर सकते हैं हम. दूसरा, मैं कॉर्पोरेट्स को इनविटेशन देना चाहती हूँ कि वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर CSR. Please give your, we can make your CSR program most vibrant and effective. तीसरा, मैं मैसेज देना चाहती हूँ सारे MPs, सारे मिनिस्टर्स को कि अपने एरिया के जो कॉर्पोरेट्स हैं, अपने एरिया का जो भी वो है, वो दीजिए हमें ना, हमें काम दीजिए आप, वो सारा वो दीजिए. वी विल बी सपोर्ट टू योर दिस थिंग. आपका खुद का नाम होगा उसमें करने का. और इसी तरह से मैं इनवाइटिंग टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, द लीडर्स, टू स्टार्ट सेम थिंग इन देयर कंट्री. बेसिकली we you asked me, no, what was the motivation. तो एक और मोटिवेशन ये था कि we wanted to make a behavioral change. Yes. बिहेवियरल चेंज, कि कैसे हम सिटीजन्स को ये करें कि वो लोग जो हैं वो कंट्री के लिए काम करें. और अकेले बैठ के समझ भी नहीं आएगा ना, यहाँ तो इतने लोग शामिल हैं. यू आर गिविंग अ फुल प्लेटफॉर्म टू पीपल टू कम एंड डू थिंग्स फॉर द कंट्री. सो इट विल बी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट दैट it will be a happy India, it will be a success, and it will be happy. So please provide us some link that I'll be posting along with the videos on the channel. So from there the people can contact you. Yeah, sure. Contact at indiaredefined.org. Anyone can reach. Anyone can do this thing. So, but all we see, basically, all we need to make this happy globe or happy India or happy, that you need love for this planet. You need to be the catalyst of change. You need to believe in your actions. You need to believe in others' actions. You have to become passionate to be the catalyst of change. And you trust in others also to become committed. And it's action for, the name of India Redefined was action for change. So all you need is love for your country. You don't need कोई special चीज नहीं चाहिए. Love for country and planet is enough.
So I'm inviting everyone, each and everyone. We actually, we wanted to create this unified diversity of this subcontinent known as India into a diversified unity. Actually, a quotation है हमारे visionary का to make it a happy India. So it is a platform for everyone. We are inviting everyone who can come and do be a this thing for a change. That's great, and wish you all the best. Thank you for your time. Actually, this was a very inspiring conversation with you. And Thank you so much. Thank you so much, Hari Prakash ji, and thank you for giving me this platform, asking such relevant questions. Because see, sometimes I'm very scared of the people who take interviews. कि पता लगा corner करने के how you are going to make it a happy country. मैं पता लगा कुछ जवाब ही नहीं. TV channel में तो ऐसी डर लगता है देख के. So very nice, very nice. Compliment should go to you. This country need people like you actually, not like you. मेरे चैनल का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो कुछ भी लर्निंग से रिलेटेड कंटेंट है हम वही पोस्ट करते हैं, जहाँ कुछ ना कुछ आदमी को सीखने के लिए मिले। इसलिए मैं आपको कंटेंट, I'll send you the content, छोटा सा एक पैसेज देती हूँ. It will have everything with you. With that, anyone can reach me. No, you find me on Facebook में, LinkedIn में, कहीं पे भरे हुए हैं ना. यहाँ भी डाल देंगे, वेबसाइट का एड्रेस डाल देंगे, और जो फॉर्म्स आपने बताए हैं ना जो डुएट्स के लिए वेबसाइट पे हैं. हाँ, वो वेबसाइट पे फॉर्म्स हैं. All those forms are, हाँ. Yeah. So thank you so much. We are running short of time. This will close now. Thank you so much. Please, I request to all the audience, please like the video and share the video to spread the message, and subscribe to the channel. We'll be meeting again. I will be discussing different projects that India redefined. Thank you, man. Thank you. आपने आपके एक क्वेश्चन का मैंने जवाब नहीं दिया. अगर